I hope you all are doing great. I hope your preparations are going well according to your board exams. So, in the last video, we have discussed about the chapter Human Health and Diseases. In the next chapter, we will discuss about that the strategies for enhancement in food production. Okay, so in this chapter we will basically discuss about what is animal husbandry, what is plant breeding, homozygosity, heterozygosity, plant tissue culture, single cell protein. These are the main topics which are important for this chapter. So let's get started with our new chapter. Basically, what is biology? It is the subject in which we deal with the science and medicine part, and the principle of biology is also applied to animal husbandry also, plant breeding also, so that food production can be increased in our country. Okay, unlike population is increasing worldwide, then the improving food production is also increasing day by day. So in this chapter we will discuss about that how we can manage the enhancement, how we can buck up all the food production in our country so that it will be given to all the people, all the population can gain it. So let's start with this chapter. So our very first topic for this chapter is animal husbandry. What is animal husbandry? The agricultural practice of breeding animals. एक agricultural practice जिसमें हम animals को breed करते हैं और उनकी जो लाइव स्टॉक है उसको रेस करते हैं, उसको बोला जाता है एनिमल हस्बेंड्री. इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं? इसमें ब्रीडिंग होती है बफेलोज की, cows की, pigs, horses, etc. Fisheries is also including in this, and rearing, selling and fish, mollusks and crustaceans etc. Fisheries भी आती हैं इसमें. फिशरीज को हम rear करते हैं, उन फिशेस को सेल करते हैं, मोलस्क्स को, क्रस्टेशियंस को. ये सब चीज़ें हमारी एनिमल हस्बेंड्री के अंदर इन्वॉल्व हैं. सम एनिमल्स लाइक crabs, fishes, cattle, sheep and camel have been used for essential products like animal eggs, meat, wool, silk, honey etc. बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि हमारे क्रैब्स, फिशेस, कैटल, शीप एंड कैमल्स, इनको हम यूज़ करते हैं, इनके एसेंशियल प्रोडक्ट्स को हम यूज़ करते हैं. जैसे कि हमें इनसे जो जो चीज़ें मिल रही हैं, फॉर एग्जांपल लाइक मीट, एग, मिल्क, वूल, सिल्क, हनी, इन सब का हम यूज़ कैसे करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेशन लगभग 70% जो है पूरी लाइफ स्टॉक की पूरे वर्ल्ड का जो लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन है इज़ इन इंडिया. लगभग 70% की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में ही पाई जाती है, एंड सम इज़ इन चाइना ऑल्सो. तो हाउएवर द वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस कॉन्ट्रीब्यूशन इज ओनली 2%. जो बाकी का वर्ल्ड फार्म का प्रोडक्शन है वो केवल 2% है. दस इन एडिशन टू कन्वेंशनल एनिमल ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस, इसके अलावा जो हमारे एडिशनल एनिमल ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस हैं उसमें न्यू टेक्नोलॉजीज आर रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी. इन दिस many new technologies are required so that it will improve the quality of productivity of our animal breeding or animal husbandry. These further practices will increase in the country. Okay, so moving to the next part, how we can manage our farms and farm animals. As we have already discussed this chapter in our class 9th also, so it is a professional approach that is required to aid traditional farm management practices and boost farm production. कैसे हम पुरानी चीज़ों को यूज़ करके, पुराने फार्म के मैनेजमेंट्स को यूज़ करके हमारी फार्म के प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकते हैं, तो उसके डिफरेंट वेज है. नंबर 1 इज़ डेयरी फार्म मैनेजमेंट. इसमें हम फार्म को मैनेज करते हैं ताकि हम मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स जो हैं उनको ह्यूमन डिमांड्स से कंप्लीट करा पाएँ. इसको बोलते हैं डेयरिंग. तो इसके बारे में क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट के, विच आर डेयरी फार्म मैनेजमेंट डील्स विद processes like that increase yield and enhance मिल्क क्वालिटी. डेयरी फार्म मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली हमारा उन प्रोसेस से डील करता है जो कि ईल्ड को बढ़ा रहे हैं मिल्क की क्वालिटी के. मिल्क ईल्ड इज़ मेनली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ फार्म ब्रीड्स. मेनली मिल्क किस पे डिपेंड होता है? ये क्वालिटी ऑफ फार्म ब्रीड्स पे डिपेंड करता है. जितनी अच्छी काऊ की क्वालिटी होगी उतना अच्छा मिल्क का प्रोडक्ट, मिल्क जो है मिल्क प्रोडक्ट होगा, और जितनी अच्छी वो ब्रीड होगी उतना अच्छा हमें उससे मिल्क मिलेगा, या फिर उतना अच्छा उससे हमें बाकी सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. Yeah, moving to the next. Under climatic condition, fine breeds with high yielding potential must combine with resistance
टू डिजीजेस। क्लाइमेटिक कंडीशंस को अगर हम देखें तो फाइन ब्रीड्स यानी कि हाई यील्डिंग पोटेंशियल जो है जिन ब्रीड्स के अंदर, उनको हम यूज़ करते हैं, जिससे वो भी ऐसी ब्रीड्स को यूज़ करते हैं जिनमें डिजीजेस कम से कम हो, जिससे हमें जो प्रोडक्ट्स एक ब्रीड से मिल रहे हैं उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो। फॉर द मिल्क ईल्ड पोटेंशियल टू बी रीड द कैटल मस्ट बी वेल लुक्ड आफ्टर एंड फ्री फ्रॉम डिजीजेस। एक ईल्ड की पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए जो कैटल है जिससे हम मिल्क को ले रहे हैं, वो भी, उसका भी हमें बहुत अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। और मेजरली द पॉइंट इज दैट एनिमल शुड बी फ्री फ्रॉम डिजीजेस। कैटल फीडिंग शुड फॉलो अ साइंटिफिक मेथड। कैटल फीडिंग में भी हमें एक साइंटिफिक मेथड को फॉलो करना चाहिए। उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ फॉडर को देखते हैं। फॉडर मतलब जो हम मतलब जो कैटल्स को हम लोग खिलाते हैं, लाइक जैसे घास, भूसा, ये सब चीज़ें, इसको फॉडर बोला जाता है, जो कि एक पर्टिकुलर हमारी कैटल्स को एज अ फूड के फॉर्म में उसको दिया जाता है। ओके, so moving to the next point, that is one must strictly follow the hygiene of both handlers and the cattles while milking, storing and transporting the milk and milk products. Okay, तो एक कोई भी जो भी कैटल का एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे वो लोग रहते हैं, तो हमें उनकी हाइजीन को लेके बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को मैनेज करना चाहिए, कैटल के भी हाइजीन को और हैंडलर के भी, जो भी उनको हैंडल करता है, ताकि हम उनके मिल्क को एक अच्छी जगह पे स्टोर करवा पाएँ, उनको ट्रांसपोर्ट एक सही से करा पाएँ, उनके प्रोडक्ट्स जो हैं इस वजह से उनमें कोई हार्म ना पहुंचे और वो अच्छी क्वालिटी में उनको हम ट्रांसपोर्ट भी करा पाएँ। टुडे ऑल द एबव प्रोसेसेस आर बिकमिंग मैकेनाइज्ड। जितने भी प्रोसेस हैं वो सारे मैकेनाइज्ड हो चुके हैं, एंड वी कैन सी अ रिडक्शन टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द हैंडलर विद द प्रोडक्ट। तो आजकल जो है एक प्रोसेस जो आ रहे हैं उसमें हम लोग ने रिडक्शन देखा है डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द हैंडलर का। डायरेक्ट उसमें हैंडलर का कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है प्रोडक्ट के साथ। रिगार्डेड स्ट्रिक्ट मेजर्स सच एज रेगुलर इंस्पेक्शन, इसलिए क्योंकि यहाँ पे रेगुलर इंस्पेक्शन होता है, जा के लोग देखते हैं कि वेदर कैटल इज इन अ गुड कंडीशन और नॉट। प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग, उनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है। रेगुलर विजिट्स करे जाते हैं बाय वेटरनियंस, शुड बी मेड मैंडेटरी, जिससे अगर इन केस एनी डिजीज इज गोइंग ऑन विद एनी कैटल, then it should be treated well. Okay, I hope it is clear. Then the next topic is poultry farm management. Poultry is a class of domesticated birds used for food in their eggs. Poultry एक class है domesticated birds की, जहाँ पे हम birds को use करते हैं अपने food के लिए और उनके eggs के लिए। इसमें chicken आता है, ducks, turkey, geese, ये सब included हैं। ये birds जो हैं, या जो word poultry है, may refer to the meat of other birds as well. जो भी meat हमें दूसरे bird से मिल रहा है, इसको poultry भी बोला जाता है। And the fundamental aspects of poultry farm management are similar to dairy farming. इसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सारे डेयरी फार्म मैनेजमेंट के सिमिलर हैं। लाइक हमें इनको अच्छी कंडीशन में रखना चाहिए, अच्छी ब्रीड इनकी यूज़ करनी चाहिए, प्रॉपर हाइजीन होना चाहिए हैंडलर और कैटल दोनों का। एंड द थर्ड वन इज़ दैट हमें उनकी डिजीज़ के बारे में रेगुलरली क्रॉस चेक करना चाहिए, सो दैट they are not so that they can not be toxicated in any kind of diseases. Okay, selection of suitable and disease free breed, पहला तो ये है कि हमें इसमें अच्छी खासी और एक डिजीज़ फ्री ब्रीड को सेलेक्ट करना चाहिए। प्रॉपर फार्म कंडीशंस भी इस जगह पे प्रॉपर होनी चाहिए। गुड क्वालिटी फीड एंड वाटर, एक अच्छी क्वालिटी के वाटर को हमें फीड कराना चाहिए। प्रॉपर हाइजीन और हेल्थ केयर का ध्यान रखना चाहिए। देयर आर मोर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स विच आर इंक्लूडेड इन दिस, लाइक एनिमल ब्रीडिंग। नेक्स्ट वन इज एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल्स को ब्रीड करना ताकि हम ईल्ड को बढ़ा सकें एनिमल हस्बेंड्री के। तो ये इसमें डिफरेंट डिटेल में चीज़ें हम पढ़ेंगे, लाइक आउट ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो स्टार्टिंग विद द इन ब्रीडिंग टॉपिक, इन ब्रीडिंग इज अ mating closely related individuals for 4 to 6 generation within the same breed. इन ब्रीडिंग क्या होता है? इन मतलब किसी एक ही ब्रीड में लगभग 4 to 6 जनरेशन तक हम जब उसी में क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स में, जब हम क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स में क्रॉस कराते हैं तो उसको हम इन ब्रीडिंग बोलते हैं, जिसकी वजह से होमोजाइगोसिटी डेवलप हो जाती है उस पर्टिकुलर ब्रीड में। तो जो ब्रीडिंग स्ट्रैटेजी है इसमें काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर मेटिंग मेल्स होते हैं एंड सुपीरियर फीमेल्स होते हैं इन पेयर ऑफ द सेम ब्रीड, और वो सारे सेम ब्रीड के होते हैं। इनकी जो प्रोजेनीज हमें मिलती हैं इस मेटिंग से, उसमें इवैल्यूएशन होता है और सिलेक्शन किया जाता है सुपीरियर मेल्स और फीमेल्स का फॉर फर्दर मेटिंग। मतलब जो भी हमारी प्रोजेनी बनी है उन सब में से जो सुपीरियर होगा उनको हम अलग कर लेंगे, फिर फर्दर मीटिंग जो है वो हम उन्हीं से करवाते हैं। अ सुपीरियर फीमेल अमंग कैटल इज अ काउ, एक सुपीरियर फीमेल जो होगी वो काउ होगी या फिर बफेलो होगी, जिसका लैक्टेशन जो है वो ईच लैक्टेशन जो होगा पीरियड वो ज़्यादा होगा। और सुपीरियर मेल जो होगा वो बुल होगा, विच गिव्स राइज टू एन आउटस्टैंडिंग प्रोजेनी, जो कि एक बुल जो है जिसके आउटस्टैंडिंग प्रोजेनीज हैं उसको हम एक सुपीरियर मेल माना जाता है। इन ब्रीडिंग इज एसेंशियल टू इवॉल्व अ प्योर लाइन इन एन
एनिमल। तो प्योर लाइन क्या है? प्योर लाइन ये है जिसमें कोई भी हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं है, मतलब कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जो कि किसी और ब्रीड की है, दे आर ऑल ऑफ द सेम ब्रीड, इनको बोला जाता है प्योर लाइन। और हाउएवर दीज अराइज अ चांस ऑफ इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। लेकिन इस वजह से क्या होता है, कभी कभी इन ब्रीडिंग के भी, डिप्रेशन के भी चांसेस हो जाते हैं। लगातार अगर हम 4 से 6 जनरेशन तक एक ब्रीड को लगातार हम उसमें इन ब्रीडिंग करवा रहे हैं तो उसमें इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ अलग अलग तरीके की डिजीजेस अकर करने लगती हैं हमारे सुपीरियर मेल्स और फीमेल्स में भी। ओके, so yes, however there rise the chances of inbreeding depression when continued. Inbreeding is done, specially close inbreeding यूजुअली रिड्यूसेस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। अगर बहुत ज़्यादा क्लोज इनब्रीडिंग है, मतलब सेम जनरेशन की, तो वो फर्टिलिटी को भी कम कर देती है और प्रोडक्टिविटी को भी कम कर देती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आउट ब्रीडिंग। द ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स इज कॉल्ड आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में क्या है, हम सेम ब्रीड के लोगों में ब्रीड करा रहे हैं, बट आउट ब्रीडिंग क्या है, इसमें जब हम अनरिलेटेड एनिमल्स, जिनका कोई ना कोई भी जो है लिंक नहीं है आपस में, उनको हम बोलते हैं आउट ब्रीडिंग। और ये बेसिकली उन इंडिविजुअल्स में कराया जाता है जो कि सेम ब्रीड के होते हैं लेकिन उनका कोई भी कॉमन इंसिस्टर नहीं रहा होता है पिछले 4 से 6 जनरेशंस तक। तो इसको हम आउट क्रॉसिंग भी कहते हैं, या डिफरेंट ब्रीड्स के भी हो सकते हैं जिसको हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग भी कहते हैं, और डिफरेंट स्पीशीज जिनको हम इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। अगर डिफरेंट स्पीशीज में हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, अगर डिफरेंट ब्रीड्स में हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस ब्रीडिंग। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज आउट क्रॉसिंग। तो आउट क्रॉसिंग क्या है, ये एक वो प्रैक्टिस है जिसमें एक एनिमल्स को मेट कराया जाता है 4 to 6 जनरेशन तक, वो भी सेम ब्रीड के, लेकिन उनके कोई भी कॉमन एंसेस्टर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे उनकी पेडिग्री के अकॉर्डिंग। पेडिग्री क्या है, पेडिग्री फैमिली ट्री बनाते हैं, तो फैमिली ट्री के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो कॉमन ना हो, अलग अलग हों, सो दैट वहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन अकर ना करें, जिसकी वजह से फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी उस ब्रीड की कम हो जाएगी। तो जो ऑफस्प्रिंग है इज ऑल्सो नोन एज आउट क्रॉस, और जो उस ऑफस्प्रिंग हमें उस आउट क्रॉसिंग से मिलता है उसको हम आउट क्रॉस बोलते हैं। ये बेस्ट ब्रीडिंग मेथड माना जाता है एनिमल्स के अंदर, और इनमें बिलो एवरेज इन मिल्क प्रोडक्शन, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन इनमें बिलो एवरेज होता है। एक सिंगल आउट क्रॉस जो होता है वो हेल्प करता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में। एक सिंगल आउट क्रॉस भी कंट्रोल करता है ये इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को। मतलब जब हमने इन ब्रीडिंग कराई थी तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा था, जिस वजह से प्रोडक्टिविटी और हमारी फर्टिलिटी भी कम हो रही थी उस ब्रीड के। बट अगर हम आउट क्रॉसिंग कराते हैं, एक भी आउट क्रॉस बीच में करा देते हैं, तो वो कंट्रोल कर लेता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को। तो कभी कभी ये जो कैटल्स को जो हैंडल करते हैं ये लोग आउट ब्रीडिंग या आउट क्रॉसिंग भी करा लेते हैं, जिस वजह से इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को हम कंट्रोल कर पाएँ। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉस ब्रीडिंग। इन क्रॉस ब्रीडिंग सुपीरियर मेल्स आर मेटेड विद सुपीरियर फीमेल्स। क्रॉस ब्रीडिंग में मैंने बताया था कि क्रॉस ब्रीडिंग में हम डिफरेंट ब्रीड्स के हम तो मतलब एनिमल्स को लेते हैं और उनको, जैसे फॉर एग्जांपल एक सुपीरियर फीमेल हमने ली, वो दूसरी ब्रीड की थी, और जो सुपीरियर फीमेल मेल हमने लिया वो दूसरी ब्रीड का था। तो इस मेथड में डिजायरेबल क्वालिटीज़ आ जाती हैं दोनों ब्रीड्स की एक पर्टिकुलर प्रोजेनी में, और ये दोनों ब्रीड्स जो है उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो कंबाइन हो जाती हैं। तो जो प्रोजेनी होगी वो हाइब्रिड एनिमल होगी। हाइब्रिड मतलब उसमें दोनों की क्वालिटीज़ ईजिली प्रेजेंट होंगी। येस, द प्रोजेनी ऑफ हाइब्रिड एनिमल में आइदर बी यूज फॉर कमर्शियल, और ये इनके जो प्रोजेनी होते हैं हाइब्रिड के, ये मोस्टली कमर्शियल प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं और मे बी सब्जेक्टेड टू सम फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग, या फिर कुछ इनब्रीडिंग के फॉर्म्स में भी यूज़ किए जाते हैं ताकि वो नए सुपीरियर ब्रीड्स को बना पाएँ। इन पंजाब हिसारडले इज़ अ न्यू ब्रीड। हिसारडले एक नई ब्रीड है शीप की जो कि डेवलप हुई है बाय क्रॉसिंग मैरिनो रैम्स एंड बीकानेरी ईयूज। तो ये एक शीप की नई हाइब्रिड बनाई गई है वहाँ पे बाय द प्रोसेस ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग। ओके, डिफरेंट ब्रीड्स के दोनों एनिमल्स को, सुपीरियर फीमेल नेक्स्ट ब्रीड की है और सुपीरियर मेल दूसरी ब्रीड का है, इनके दोनों के बीच में जब हम ब्रीड कराते हैं तो हमें डिजायरेबल क्वालिटीज़ मिलती हैं दोनों की ब्रीड्स की, विच इज़ हेल्पफुल फॉर अवर प्रोजेनी ओनली। Okay, now moving to the next topic, that is interspecific hybridization. In this method two different related species, इसमें दो different related species को mate कराया जाता है। interspecific it means that दो अलग अलग species से जब हम mating कराते हैं इनका फिर in some cases the progeny may combine desirable features। कुछ cases में ऐसा होता है कि जो features हैं दोनों के वो combine हो जाते हैं of both the parents, दोनों parents के, and कुछ केसेस में कंसिडरेबल इकोनॉमिक वैल्यू आ जाती है। फॉर एग्जांपल द म्यूल, जैसे म्यूल जो है उसको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, म्यूल जो कि एक हमारा हाइब्रिड है,
किसका है हाइब्रिड? वो डोंकी और हॉर्स का हाइब्रिड है, जो कि इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का अच्छा एग्जाम्पल है। बट वो जो है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जनरेट नहीं कर पाता, तो वो जो है इकोनॉमिक वैल्यू है केवल उसकी, केवल वो सामान इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प कर सकता है, बट ऐसी कोई फर्टाइल वैल्यू नहीं है कि जिससे हमें कुछ ऐसी प्रॉपर चीज़ मिल पा रही हो। तो ये भी हम देखना चाहिए कि किस तरीके से वो उसकी वैल्यू हमें दिखानी है। कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स, तो कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स आर कैरीड आउट बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो हम अलग अलग कैरी करते हैं ताकि हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को कैरी आउट करा पाएँ। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता क्या है? इसमें हम लोग सेमेन को कलेक्ट करते हैं मेल से, मेल पेरेंट से, और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में उसको डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब जो वो सेमेन है उसको हम यूज़ करेंगे, या फिर वो फ्रोजन है एज डिजायर्ड एंड कैन बी लेटर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्रीडर्स। फिर वो जो सेमेन है उसको हम फ्रीज कर देंगे थोड़े टाइम के लिए, और फिर वो थोड़े टाइम बाद ब्रीडर उसको लेटर ट्रांसपोर्ट कर देगा। इन दिस वे डिजायरेबल मीटिंग आर कैरिड आउट। इस तरीके से डिजायरेबल मीटिंग जो है वो कैरिड आउट हो जाती है। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। इसको MOET भी कहा जाता है। जो सक्सेस रेट है क्रॉसिंग मैच्योर मेल्स विद मैच्योर फीमेल एनिमल्स इज लो। तो जो सक्सेस है कि एक पर्टिकुलर सुपीरियर मेल को एक सुपीरियर फीमेल मिल जाए मेटिंग के लिए जिससे एक अच्छा हाइब्रिड बन पाए, तो इसके चांसेस बहुत लो होते हैं। तो एक MOET प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया था हर्ड इम्प्रूवमेंट के लिए। इस मेथड में करा था कि जो हार्मोन होते हैं जैसे FSH जो कि होता है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ये एडमिनिस्टर कराया जाता है ताकि वो फॉलिकल के मैच्योरेशन या सुपर ओव्यूलेशन में हेल्प करे। वेयर इंस्टेड ऑफ 1 एग, एक एग की जगह पे वहाँ पे 6 से 8 एग एक साथ डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से हाई मिल्क ईल्डिंग फीमेल ब्रीड जो होती है जिसमें हाई मिल्क ईल्ड हो पाता है और गुड क्वालिटी की मीट ईल्डिंग बुल्स होते हैं, उनको ब्रीड कराया जाता है सक्सेसफुली ताकि वो हर्ड के प्रोडक्शन में शॉर्ट टाइम में ही काफ़ी अच्छा एक रिजल्ट हमें दें। ओके तो इसको बोला था MOET। नाम से ही पता चल रहा है कि मल्टीपल ओव्यूलेशन यहाँ पे हो रहा है, मल्टीपल ओव्यूलेशन का हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इट इज द टेक्निक विच इज कॉल्ड मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. So this animal breeding topic is very vast topic. So now the next topic for this chapter is beekeeping. Apiculture is the conservation of beehives. Apiculture एक टेक्निक होती है जिसमें हम beehives को कंजर्व कराते हैं ताकि वो हनी का प्रोडक्शन करा पाएँ. तो बी कीपिंग शुड बी प्रैक्टिस इन एन एरिया विद वाइल्ड शर्ब्स. तो ऐसी जगहों पे इसको प्रैक्टिस कराया जाता है जहाँ पे वाइल्ड शर्ब्स हो, मतलब बुशी ट्रीज वगैरह प्रेजेंट हो, फ्रूट हो और कैट्स हो और कल्टिवेटेड क्रॉप्स हो. हनी एक हाई होता है न्यूट्रिशन में एंड ऑल्सो हैज़ मेडिसिनल वैल्यू, मतलब इससे हम कई ज़्यादा मेडिसिन भी बनाने में यूज़ करा जाता है. बीज वैक्स ये जो हनी से मिलता है हमें, ये मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है कॉस्मेटिक्स और पॉलिशेस की तरह. और जो राइज है, मतलब हनी की डिमांड जो है वो बढ़ गई है काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से एपीकल्चर की प्रैक्टिस को भी इंक्रीज़ कराया जा रहा है ताकि हम हनी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करा पाएँ. एंड द मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ इज़ एपिस इंडिका. एपिस इंडिका जो मेजरली इंडिया में पाई जाती है, इस जो बीज की जो एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ है इसको बोला था एपिस इंडिका. एंड द बी कीपिंग रिक्वायर्स नॉलेज. अब बी कीपिंग करने के लिए भी हमें पर्टिकुलर उसके बारे में नॉलेज चाहिए, जैसे कितने के टाइम के लिए हमें बीज को वहाँ पे ओरिएंटेड करके रखना है. और सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ये बताते हैं कि कैसे हमें बी कीपिंग करनी चाहिए. गिवन बिलो आर फ्यू ऑफ द फैक्टर्स टू कीप इन माइंड वाइल गोइंग फॉर बी कीपिंग. इन कुछ चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए कोई भी बी कीपिंग की प्रैक्टिस कराते समय. लाइक हमें नॉलेज होना चाहिए नेचर के बारे में, जिस नेचर में हम वो बी कीपिंग को परफॉर्म करवा रहे हैं. हैबिट्स होनी चाहिए, पता होनी चाहिए बीज के बारे में. सिलेक्शन पता होना चाहिए कि वो लोकेशन कैसी होनी चाहिए जहाँ पे प्रॉपर बीज का कल्चर परफॉर्म किया जा सके. हाइविंग ऑफ स्वाम्स होना चाहिए. मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स इन सीजन, कैसे हम अलग अलग सीजन्स में बी हाइव्स को मैनेज करा पाएँ. और हनी और बी वैक्स का कलेक्शन किस तरीके से करा पाएँ. Now moving to the next topic, that is fisheries. Fishery एक is an industry that involve the catching, processing और selling of fish. ये एक particularly अगर देखा जाए तो ये इंडस्ट्री है जहाँ पे हम फिशेस को पकड़ते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं और उनको सेल करते हैं. सेल फिशेस जो हैं या फिर अदर एक्वेटिक एनिमल्स, उनका यहाँ पे मतलब कैच करा जाता है, उनको प्रोसेस करा जाता है और अलग अलग काम सिर्फ एक्वेटिक एनिमल्स की वजह से यहाँ पे होते हैं. तो एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि इसमें क्या आता है, प्रॉन्स आ जाते हैं, क्रैब, लॉबस्टर, एडिबल ऑयस्टर्स एक्सेट्रा. तो फ्रेश वाटर फिशेस जैसे कि हमारी हो गई कैटला, रोहू, ये कॉमन कार्प. मरीन फिशेस लाइक हिल्सा, सार्डीन्स, मैकेरल एंड
स्पर्म फ्रेश। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिशरीज़ की वेराइटीज़ हैं जो कि हम इसमें, फिशरीज़ का बेसिकली मेन टॉपिक ही यही है कि इसमें हम कैच करते हैं फिशेस को, प्रोसेस करते हैं, उनको सेल करते हैं ताकि हम उनसे क्या क्या इकोनॉमिक वैल्यू ले सकते हैं, इस बारे में है। तो हमने डिफरेंट फिशरीज़ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन इकोनॉमी में। इसकी वजह से लगभग मिलियंस ऑफ फिशर्स एंड फार्मर्स जो है उनको कोई काम धंधा मिल पा रहा है। इट इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लिविंग इन एंड कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज मतलब जो लोग नदी के किनारों पे रह रहे हैं, तो उनके लिए एक प्राइमरी सोर्स है जीने का। डिफरेंट टेक्निक्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट की जाती हैं ताकि हम उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करा पाएँ, सच एज एक्वाकल्चर एंड पिसीकल्चर। ओके, इंक्लूडिंग पिसीकल्चर भी फिशेस का कल्चर होता है, तो इंक्लूडिंग फ्रेश वाटर एंड मरीन फिशेस, इसमें दोनों ही टाइप के फिशेस का हम कल्चर करते हैं। ये टेक्निक जो है इसकी वजह से फिशरी की इंडस्ट्री में ग्रोथ आई है और फार्मर्स की इनकम में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग एक बहुत ही ट्रेडिशनल फार्मिंग है जो कि काफ़ी टाइम से चलती हुई आ रही है, और ये बेसिकली प्लांट की क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, बेसिकली इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए प्लांट ब्रीडिंग की टेक्निक हम यूज़ करते हैं, ताकि ये जो प्लांट्स की अगर ब्रीड अच्छी होगी तो इस वजह से हमारी आगे आने वाली जनरेशन को अच्छी क्वालिटी में चीज़ें मिल पाएंगी, उनसे उनकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो एन इंक्रीज इन लैंड विद बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस। अगर लैंड में इंक्रीजेज आएंगे, लैंड की क्वालिटी जो है, क्वांटिटी बढ़ेगी, उसकी वजह से प्रैक्टिसेस अलग अलग तरीके की हम परफॉर्म करते हैं जिसमें उसकी इंक्रीज ईल्ड हो जाएगी, बट ओनली अ लिटिल, बट थोड़े टाइम के लिए। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो था, डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो है इसको पहली बार लेके आए थे, इन्होंने परफॉर्म किया था। तो बेसिकली ये ग्रीन जो भी हमारी क्रॉप्स वगैरह हैं इनके लिए लाया गया था ताकि इनकी जो ईल्ड है उसको हम बढ़ा पाएँ इंडिया के अंदर। तो प्लांट ब्रीडिंग एक टेक्नोलॉजी है जिसने इंक्रीज़ करी है ईल्ड को, और हमारी जितनी भी कंट्री की जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स हैं उनको हेल्प करा है कि जिससे हमारी इकोनॉमिक वैल्यू जो है काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। तो व्हाट इज़ प्लांट ब्रीडिंग, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यस, द प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें प्लांट स्पीशीज़ को हम ब्रीड कराते हैं ताकि हम एक डिज़ायरेबल प्लांट टाइप को डेवलप करा पाएँ जिसके अंदर अच्छी खासी कंडीशंस पाई जाती हैं और वो एक बेटर ईल्ड दे पाए जिसमें डिजीज़ेस कम से कम हो। तो एक अच्छी ब्रीड वही मानी जाती है जिसमें डिजीज़ेस भी कम हो, उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो और वो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कोई अच्छी हो, तो वो प्लांट जो है वो एक अच्छा क्वालिटी का माना जाता है। तो प्लांट ब्रीडिंग बेसिकली इसीलिए कराई जाती है। जो प्रैक्टिस है कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग की, वो काफ़ी टाइम से चल रही है, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन हुआ है। और इसके एविडेंस ये है कि प्लांट ब्रीडिंग रिकॉर्ड्स डेट्स बैक टू 9,000 to 11,000 ईयर्स बिफोर। लगभग 9,000 से 11 साल पहले से ये चलती हुई आ रही है। और आज जो मेजर फूड क्रॉप्स हैं वो डोमेस्टिकेटेड वेराइटीज़ के ही हमें मिल रहे हैं। तो जो क्लासिकल पुरानी प्लांट ब्रीडिंग जो थी उसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है प्योर लाइन्स का कराया जाता था या फिर आर्टिफिशियल सिलेक्शन कराया जाता था ताकि हम उन प्लांट्स को डेवलप करा पाएँ जिनके अंदर सुटेबल ट्रेड्स हो, हायर ईल्ड हो, न्यूट्रिशन अच्छा पाया जाता हो और डिजीज़ भी ना हो। तो प्लांट जो ब्रीडिंग है हमारी, वो मॉलिक्यूलर जेनेटिक टूल यूज़ करा जा रहा है ताकि वो हम उसे जेनेटिक्स में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में और टिश्यू कल्चर में उसको लेके आ पाएँ, जिससे हम अलग अलग क्वालिटीज़ के, अच्छी क्वालिटीज़ के प्लांट्स को इम्प्रूव करा पाएँ, लेके आ पाएँ यहाँ पे, जिससे उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी अच्छी हो और इकोनॉमिक वैल्यू भी अच्छी हो। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ब्रीडर्स के जो कि इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं क्रॉप्स प्लांट्स में। तो ग्रोथ जो है किसी भी क्रॉप की वो अच्छी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए। इंक्रीज टॉलरेंस टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस, जितने भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस हैं उनको वो टॉलरेट कर पाए। फॉर एग्जांपल आंधी, तूफान, बारिश, इन सब कंडीशंस को वो इजीली टॉलरेट कर पाए। फिर रेजिस्टेंस टू पैथोजन, जितने भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है पैथोजेंस, उनसे वो रेजिस्ट रहे। इंक्रीज टॉलरेंस टू पेस्ट एंड इंसेक्ट्स, पेस्ट और इंसेक्ट्स उसको ज़्यादा हार्म ना पहुँचा पाए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक ब्रीडर के जो कि हम एक इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं क्रॉप प्लांट्स में। मूविंग टू द नेक्स्ट, कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, जो रूट है ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम इज जेनेटिक वेरिएबिलिटी। उसकी जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो है वो उसकी रूट होती है किसी भी प्रोग्राम की। इसमें हम डिफरेंट वाइल्ड वैरायटीज़ को प्रिजर्व करके रख पाते हैं जिनकी रिलेटिव्स ऑफ द कल्टिवेटेड स्पीशीज इज नेसेसरी टू यूटिलाइज नेचुरल जीन, जिससे हमें उनकी नेचुरल जीन्स के बारे में पता चलता है इफेक्टिवली। एक इंटायर कलेक्शन हमें करना चाहिए जर्म प्लाज्म का, मतलब उसके जर्म्स को हमें, जर्म प्लाज्म को उसके में कलेक्ट करके रखना चाहिए जिससे हमें डाइवर्स एलीज का फॉर्मेशन करा पाए एक क्रॉप का कलेक्शन करके। इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, जो जर्म प्लाज्म है उसको हमें एग्जामिन करना चाहिए ताकि हम प्लांट की डिजायरेबल कॉम्बिनेशन जो है, जो कि कैरेक्टर्स उसमें आने वाले हैं, उनको इजिली देख पाएँ। जो सेलेक्टेड प्लांट्स हैं वो ऐसा होना चाहिए जिससे हमारी इंक्रीज ईल्ड बढ़े, हाइब्रिडाइजेशन और क्रिएशन ऑफ प्योर लाइन्स, और प्योर लाइन्स का क्रिएशन हो पाए।
तो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सेलेक्टेड पेरेंट्स, जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं दो डिफरेंट पेरेंट कैरेक्टर्स के, उनको कंबाइन करा जाए। फॉर इंस्टेंस द हाई प्रोटीन क्वालिटी ऑफ वन पेरेंट, मतलब एक पेरेंट की हाई प्रोटीन क्वालिटी होनी चाहिए, उसको हमें एक ऐसे अदर पेरेंट से क्रॉस कराना चाहिए जिसके अंदर डिजीज फ्री रेजिस्टेंस ट्रेट्स प्रेजेंट हो, जो कि पॉसिबल होता है केवल क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन में ही। एंड दीज डिजायर्ड कैरेक्टर्स आर कंबाइंड इन वन प्लांट। तो जब प्रोजनी इनकी बनेगी तो दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एक प्लांट में हमारे आ जाएंगे, जिसको हम हाइब्रिड बोलेंगे। सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, तो जो ये स्टेप सेलेक्ट करता है प्रोजेनी को ऑफ द हाइब्रिड विद द डिजायर्ड कैरेक्टर्स कॉम्बिनेशन, एंड द सिलेक्शन प्रोसेस इज एसेंशियल टू द सक्सेस ऑफ द ब्रीडिंग गोल्स एंड नीड केयरफुल साइंटिफिक एवेल्यूशन ऑफ द प्रोजेनी। मतलब इसमें हम ऐसी एसेंशियल सक्सेस तभी हो पाएगी हमारे प्लांट ब्रीडिंग की टेक्नोलॉजी की, जब इसमें जो मेन साइंटिफिक एवेल्यूशन है प्रोजेनी का जब किया जाए, तो उसमें अच्छी क्वालिटीज़ हमें मिलें जो सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं until they reach a homozygous state। मतलब तभी तक सेल्फ पॉलिनेटेड कराना चाहिए जब तक वो होमोजाइगस स्टेट में ना पहुंच पाए, ताकि वहाँ पे जब होमोजाइगस कंडीशन में पहुंच जाते हैं तो हमने पढ़ा था इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, एंड द कैरेक्टर्स विल नॉट सेग्रीगेट इन द प्रोजेनी, और वो कैरेक्टर्स फिर प्रोजेनी में सेग्रीगेट नहीं हो पाते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक इज टेस्टिंग एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टिवर्स। तो जो नई लाइंस को हम सेलेक्ट करते हैं उनकी ईल्ड्स को और उनकी अदर इकोनॉमिक ट्रेड्स को देख के ये सर्वे करा जाता है बाय ग्रोइंग देम इन रिसर्च एंड मॉनिटरिंग देयर परफॉर्मेंस, ताकि सर्वे कराया जाए उनको ग्रो करा के और उन पर रिसर्च करी जाए ताकि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन में एडिक्वेट इरीगेशन करवा पा रहे हैं और अदर क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस उनकी कैसी परफॉर्म हो रही हैं। तो इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है जहाँ पे नियरली 33% जो इंडिया है उसकी जीडीपी ही आती है एग्रीकल्चर से, और एम्प्लॉयज अप्रॉक्सीमेटली 62% ऑफ द पॉपुलेशन, लगभग 62% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर की वजह से एम्प्लॉयमेंट में है। तो वेरियस प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जिससे हम फूड प्रोडक्शन की रोल को इंडिया में बढ़ा पाए आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस, एंड दिस फेज इज कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। इसी फेज को हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं, लाइक वीट और राइस का अगर हम देखें तो द ईयर 1960 टू 2000 सॉ एन इंक्रीज इन वीट प्रोडक्शन। लगभग 1960 से 2000 तक एक इंक्रीज हुआ है वीट के प्रोडक्शन में, फ्रॉम 11 मिलियन टन्स टू 75 मिलियन टन्स, वाइल राइस प्रोडक्शन जो है वो स्केल्ड अप टू 89.5 मिलियन टन्स फ्रॉम 35 मिलियन टन्स। लगभग वो 35 मिलियन पहले था, फिर वो 89.5 मिलियन टन्स बढ़ गया है। दिस इज बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सेमी डाफ वेराइटीज़। और ये किस वजह से हुआ है, यहाँ पे सेमी डाफ वेराइटीज़ का डेवलपमेंट हुआ है वीट और राइस के। लाइक नॉर्मन ई बॉर्डलॉक, अ नोबल लॉरेट एट द इंटरनेशनल सेंटर ऑफ वीट फॉर वीट एंड मेस इम्प्रूवमेंट इन मैक्सिको, इन्होंने सेमी डाफ वेराइटी जो है वीट की ये लेके आए थे, जिस वजह से इसका इंक्रीमेंट हुआ है। इन 1963 हाई यील्डिंग और डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटी जैसे कि सोनालिका, कल्याण सोना, ये इंट्रोड्यूस कराई गई थी वीट ग्रोइंग एरियाज में इंडिया में। IR8 एंड टाइचुंग नेटिव वन डेवलप सेमी डाफ राइस वेराइटीज़। तो इन्होंने सेमी डाफ वेराइटीज़ जो है राइस की वो डेवलप कराई थी, और जो डेरिवेटिव्स हैं वर इंट्रोड्यूस इन 1966। अलग अलग डेरिवेटिव्स इंट्रोड्यूस कराए गए थे 1966 में। इन द फॉलोइंग ईयर्स बेटर यील्डिंग सेमी डाफ वेराइटीज सच एज जया एंड रत्ना वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया। इसके अलावा कुछ अलग डेरिवेटिव्स लाइक इन 1966 तो बेटर यील्डिंग सेमी डाफ वेराइटीज जैसे कि जया, रत्ना, ये सब प्रोड्यूस कराए गए थे इंडिया में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है शुगर केन, सैक्रम बारबेरी। ये प्रोड्यूस हुआ था नॉर्थ इंडिया में, लेकिन उसकी पुअर शुगर कंटेंट और ईल्ड थी। ट्रॉपिकल केस जो है उनको ग्रो कराया जा रहा था साउथ इंडिया में। सैक्रम ऑफिसिनरम इसकी हाई शुगर कंटेंट था और इसमें की जो स्टेम्स थी वो थिकर थी, लेकिन ये थ्राइव वेल इन केवल नॉर्थ इंडिया में ही अच्छे से ग्रो करा पा रहा था। तो फॉर डिजायर्ड क्वालिटीज़ जो दोनों स्पीशीज़ थी उनको सक्सेसफुली क्रॉस कराया गया ताकि शुगर केन क्वालिटीज़ की जो वेराइटीज़ हैं उनमें ग्रेटर ईल्ड आ पाए, उनकी थिक स्टेम्स हों, ज़्यादा शुगर की क्वांटिटी उनमें प्रेजेंट हो और वो नॉर्थ इंडियन एरियाज़ में भी ग्रो कर पाएँ। थर्ड एग्जाम्पल था इसका मिलेट्स। तो हाइब्रिड जो होती है मेज़ और ज्वार की और बाजरा की हैव बीन डेवलप्ड प्रोग्रेसिवली इन इंडिया लीडिंग टू सेवरल वाइड ईल्डिंग वेराइटीज़, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा वाइड ईल्डिंग वेराइटीज़ जो कि रेजिस्टेंस हैं वाटर स्ट्रेस के लिए वो डेवलप हो गई थी। तो प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, तो प्राइमरी सीन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, फंगस, बैक्टीरिया एंड वायरसेस ऑल्टर द yield ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, फंगस, बैक्टीरिया और वायरस, उनकी जो ईल्ड है वो
हम कल्टिवेटेड क्रॉप्स की कम कराते हैं, तो ऑफन 20 to 30% ऑफ द क्रॉप इज़ लॉस्ट, लगभग 20 to 30% जो है क्रॉप्स हमारी वो लॉस्ट हो जाती हैं। और इवन टोटल जो ब्रीडिंग और डेवलपमेंट है क्रॉप्स का, जो कि रेजिस्टेंस एंड डिजीज़ के लिए, वही जो है हमारी फ्रूट प्रोडक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करा पा रही हैं, जिसकी वजह से जो डिक्रीज द डिपेंडेंस ऑफ फंजीसाइड्स एंड बैक्टीरिसाइड्स, जिसका फंगीसाइड्स और बैक्टीरिसाइड्स का जो हम उन पे डिपेंड थे, तो वो ये भी इनकी भी डिपेंडेंसी हमारे अब कम हो गई है। जो एबिलिटी है एक प्लांट की ताकि वो प्रिवेंट करा पाए पैथोजन को फ्रॉम कॉजिंग डिजीजेस इज डिटरमाइंड बाय द जेनेटिक composition of the host plant। तो ब्रीडिंग से पहले की बात है, इट इज़ एडवाइजेबल टू नो अबाउट द ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज। तो ये अच्छी बात थी कि अगर वो ऑर्गेनिज्म जो एक पर्टिकुलर डिजीज़ कॉज कर रहे हैं हम उनके बारे में भी जानें, उनका ट्रांसमिशन मोड कैसा है, वो कैसे फैलती हैं। कुछ फंगल डिजीजेस जैसे कि ब्राउन रस्ट ऑफ वीट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, और बैक्टीरियल डिजीजेस जैसे कि ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसिफर्स, डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस आर टोबैको मोजाइक, टर्निप मोजाइक। तो ये अलग अलग टाइप की डिजीजेस हैं जो हमें पता है, जो कि अलग अलग प्लांट्स में अकर करती हैं। मेथड्स क्या क्या हैं ब्रीडिंग के जो कि डिजीज़ रेजिस्टेंस में यूज़ किए जाते हैं। तो ब्रीडिंग इज़ कैरीड आउट बाय कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स। तो ब्रीडिंग जो है वो कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स जो है उसको कैरी आउट कराती है ताकि हम एक डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी एक परफॉर्म करा पाएँ अलग अलग इंडिविजुअल्स में। इट्स स्टेप्स आर सिमिलर टू दोज फॉर ब्रीडिंग एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स। के स्टेप सेम होते हैं जैसे कि एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स में थे। तो वेरियस स्टेजेस जो हैं इसकी वो ये हैं कि स्क्रीनिंग जर्म प्लाज्म फॉर रेजिस्टेंस सोर्सेज। एक जर्म प्लाज्म को हमें उसका स्क्रीन करना चाहिए ताकि हम उसकी रेजिस्टेंस सोर्सेज के बारे में जान पाएँ। जो हाइब्रिडाइजेशन है सिलेक्टेड पेरेंट का हमें कराना चाहिए। सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द हाइब्रिड, उसके हाइब्रिड के परफॉर्मेंस के बाद हमें उसका सिलेक्शन और इवैल्यूएशन कराना चाहिए। नई वेराइटीज़ को टेस्ट करना चाहिए और रिलीज़ करना चाहिए। सम क्रॉप वेराइटीज़ आर ब्रीड बाय हाइब्रिडाइजेशन। कुछ क्रॉप वेराइटीज़ को हमें ब्रीड कराना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। एंड सिलेक्शन फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंस अगेंस्ट फंजाई, और उनका सिलेक्शन करना चाहिए ताकि वो डिजीज़ रेजिस्टेंस रहें फंगी और फंजाई, बैक्टीरिया और वायरसेस के। इसके बाद यहाँ पे कुछ टेबल्स हैं, कौन कौन सी क्रॉप्स में कौन कौन सी वेराइटीज़ पाई जा रही हैं, वो किस चीज़ डिजीज़ के रेजिस्टेंट है। जैसे कि हमारा वीट हो गया, इसकी वेराइटी हिमगिरी जो है वो लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट और हिल ब्लंट डिजीज़ के अगेंस्ट थी। ब्रासिका जिसको हम प्यूसा स्वर्णिम या फिर करण राई भी बोलते हैं, ये वाइट रस्ट के अगेंस्ट जो है वो हमारी रेजिस्टेंट है। इसके बाद हमारी कॉलीफ्लावर जिसकी वैरायटी है प्यूसा शुभ्रा या प्यूसा स्नोबॉल K1, ये रेजिस्टेंट है ब्लैक रॉट और कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट के लिए। एंड काउपी जो कि प्यूसा कोमल एंड ये रेजिस्टेंट है बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए। फिर आता है हमारा चिली जो कि प्यूसा सदाबहार, और ये रेजिस्टेंट है हमारा चिली मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस एंड लीफ कर्ल्स के लिए। तो ये कन्वेंशनल ब्रीडिंग जो है वो लिमिटेड रहती है ताकि वो फिक्स नंबर ऑफ डिजीज़ को रिस्क कर पाए। कुछ क्रॉप वेराइटीज़ में इंक्लूडिंग म्यूटेशन, इसमें कुछ म्यूटेशंस भी आ जाते हैं स्क्रीनिंग करने पर। दैट प्लांट मटेरियल ऑफ रेजिस्टेंस समटाइम्स हेल्प्स आइडेंटिफाई डिज़ायरेबल वंस। इसमें हम कुछ अलग अलग मटेरियल्स को जो कि रेजिस्टेंस है कुछ अलग अलग डिजीज़ के लिए, उनको डिज़ायरेबल वंस को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और ये जो प्रोसेस है बाय विच जेनेटिक वेरिएशंस टेक्स प्लेस, ये जो प्रोसेस है जो कि जेनेटिक वेरिएशन जिसमें हो रहा है प्लेस थ्रू चेंजेस इन द बेस सीक्वेंस। इसमें चेंजेस आता है बेस सीक्वेंस में विद इन जीन्स इज कॉल्ड म्यूटेशन। तो जब इनके बेस सीक्वेंस में चेंजेस आ जाता है तो कुछ पर्टिकुलर चेंजेस अकर करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। इसके अलावा केमिकल्स और रेडिएशन जो है ये भी म्यूटेशन को आर्टिफिशियली इंड्यूस करा सकते हैं। जो सिलेक्शन है और यूजेज है प्लांट्स का डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, उसको हम लोग म्यूटेशन ब्रीडिंग कहते हैं। इन मंग रेजिस्टेंस टू येलो मोजाइक वायरस और पाउडरी मिल्ड्यू वर इंड्यूस बाय म्यूटेशन। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि म्यूटेशन से ही इंड्यूस हुई हैं। मोर ओवर रेजिस्टेंस टू द येलो मोजाइक वायरस इन भिंडी रिजल्टेड इन अ न्यू वेराइटी ऑफ ए एस्क्यूलेटस कॉल्ड परभनी क्रांति। एंड देन प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट। तो इंसेक्ट और पेस्ट इन्फेस्टेशन, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इनके स्केल्स में डिस्ट्रक्शन आया है क्रॉप प्लांट्स के और क्रॉप प्रोडक्शन के, जिसमें अगर इनका रेजिस्टेंस होता है किसी भी होस्ट क्रॉप प्लांट में तो वहाँ पे बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखती हैं। जैसे कि फॉर इंस्टेंस रेजिस्टेंस टू सीरियल लीफ बीटल्स इन वीट एंड जैसे इन कॉटन। तो हाई एस्पार्टिक एसिड पाया जाता है, लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट इन मेज लेड टू रेजिस्टेंट टू मेज स्टेम बोरर्स। इसकी वजह से मेज बोरर्स जो हैं स्टेम बोरर्स उनमें भी रेजिस्टेंस पाया जा रहा है। सो इसमें कुछ टेबल्स हैं जिसमें अलग अलग रेजिस्टेंस वेराइटीज़ देखी गई हैं। लाइक
दिस, तो क्रॉप जो कि हमारा ब्रासिका है, जिसको रेपसीड मस्टर्ड भी कहा जाता है, इसकी वैरायटी है प्यूसा गौरा, जो कि इंसेक्ट पेस्ट जो कि एफिड्स के लिए ये रेजिस्टेंट है। फिर उसके बाद आता है फ्लैट बीज, जो प्यूसा सेम 2, प्यूसा सेम 3, ये रेजिस्टेंट है हमारा जेसिड्स, एफिड्स एंड फ्रूट ब्रोरर्स के लिए। ओकरा, जिसको भिंडी बोलते हैं हम, ये प्यूसा सवानी एंड प्यूसा A4, जो कि रेजिस्टेंट है शूट एंड फ्रूट बोरर्स के लिए। तो प्लांट ब्रीड एंड इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी, तो मोर देन 840 मिलियन प्लांट जो हैं उनमें कुछ एडिक्वेट फूड जो है उसकी कमी पाई जाती है, ताकि वो डेली न्यूट्रिशनल वैल्यू को, हमारी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट ना कर पाए। मैनी सफ़र फ्रॉम माइक्रोन्यूट्रिएंट, कुछ में माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी पाई जा रही है, प्रोटीन्स की, और विटामिन डिफिशियंसीज पाई जा रही हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लेग्यूम, फिशेस ये ज़्यादातर अफोर्डेबल नहीं है। डाइट्स ऐसी होती हैं कि जो जिसमें एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे कि आयरन, विटामिन ए, आयोडीन एंड जिंक, इनका जो है वो रिड्यूस, इनकी अगर कमी हो जाती है तो इससे मेंटल एबिलिटीज़ भी रिड्यूस हो जाती हैं, और अलग अलग जो डिजीज़ेज़ हैं इनके चांसेस हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जिसको हम बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। इस प्रोसेस में क्रॉप्स विच आर ब्रीड विद हायर विटामिन, इसमें ब्रीड कराया जाता है क्रॉप्स को जिसमें हायर विटामिन, मिनरल, प्रोटीन और हेल्दियर फैट्स पाया जाता है, ताकि वो पब्लिक हेल्थ को बढ़ा पाएँ। बेसिकली ये बायो फोर्टिफिकेशन का प्रोसेस है ही इसीलिए, जिससे हम जो क्रॉप्स डेवलप करा रहे हैं उनके अंदर हम विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, इनकी क्वांटिटी को बढ़ा पाएँ, जिससे हमारी वो पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करा पाएँ। तो इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो इम्प्रूवमेंट के लिए ही था पब्लिक के। ओके, तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी को ये बढ़ाता है, ऑयल कंटेंट और क्वालिटी को बढ़ाता है, विटामिन के कंटेंट को इंक्रीज करता है प्लांट्स के अंदर, और मिनरल के कंटेंट को भी इंक्रीज करता है। तो कंपेयर टू एग्जिस्टिंग मेज हाइब्रिड लगभग 2000 हैड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द अमीनो एसिड। इसमें अब अमीनो एसिड्स की क्वांटिटी ट्वाइस हो गई है। लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, ये कुछ अमीनो एसिड्स हैं, इनकी क्वांटिटी बढ़ गई है। वीट वेराइटी जो है इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है। यूज्ड एज अ डोनर फॉर इम्प्रूविंग कल्टिवेटेड वीट, जिसमें जो डोनर है उसकी कल्टिवेटेड ब्रीड की जो कंटेंट है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू डेवलप एन आयरन फोर्टिफाइड राइस, इसमें पॉसिबल कर दिया है कि जो आयरन फोर्टिफाइड राइस है उसकी वैरायटी को हम इम्प्रूव करा पाएँ, जिसमें मोर देन 5 टाइम्स द आयरन कंज्यूम्ड इन द रेगुलर वैरायटी, जो रेगुलर वैरायटी से लगभग 5 गुना ज़्यादा आयरन का कंटेंट पाया जाता है। वेरियस वेजिटेबल क्रॉप्स आर रिच इन विटामिन, बहुत सारी वेरियस वेजिटेबल क्रॉप्स है जो कि विटामिन में रिच हैं और मिनरल्स में भी, जिसकी वजह जैसे कि कैरेट, स्पिनच एंड पंपकिन आर इनरिच्ड विद विटामिन ए, हमारी ये सब विटामिन ए में रिच हैं। बिटा गार्ड, मस्टर्ड, टोमेटो और गार्डन पीस ये सब फुल ऑफ है विटामिन सी के। आयरन एंड कैल्शियम रिच स्पिनच, आयरन और कैल्शियम रिच स्पिनच जो है, और बथुआ एंड प्रोटीन इनरिच बीन्स, ये सब सारी आयरन और कैल्शियम रिच पाई गई है। इसके बाद एक टॉपिक आता है हमारा जिसको हम बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन और SCP। जो पॉपुलेशन है ह्यूमंस की और एनिमल्स की वो बढ़ती जा रही है एक अलार्मिंग रेट पे बहुत तेज़ी से, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है या फूड जो है वो उतना ग्रोइंग डिमांड्स को मीट नहीं कर पा रहा है, उतनी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो जो शिफ्ट है फ्रॉम ग्रेन टू मीट डाइट्स, मतलब पहले लोग ग्रेन्स खाया करते थे, बट एज ड्यू टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन तो इनकी पूरी नीड्स नहीं कंप्लीट हो पा रही है, तो उनकी जो डाइट्स हैं वो मीट की तरफ शिफ्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से जो डिमांड है सीरियल्स की वो भी बढ़ गई है। तो इट टेक्स अराउंड 3 to 10 kg ऑफ ग्रेन टू ऑब्टेन 1 kg बाय मीट बाय एनिमल फार्मिंग। तो लगभग 3 से 10 kg जो हम अगर ग्रेन लेते हैं तो 1 kg मीट में वो हमारा वो कंप्लीट हो जाता है एनिमल फार्मिंग से। तो मोर ओवर मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, तो इसीलिए जो क्वार्टर है ह्यूमन पॉपुलेशन का वो सफ़र करता है माल न्यूट्रिशन से, क्योंकि प्रॉपर हमें जो डाइट है वो नहीं मिल पा रही है। तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी कम अक्रॉस सिंगल सेल प्रोटीन। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक टेक्निक निकाली थी जिसको बोलते हैं SCP या सिंगल सेल प्रोटीन। ये जो सोर्सेज हैं प्रोटीन के एनिमल्स के लिए और ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए उसको ऑल्टरनेट यूज़ में लेके आता है, जिससे कोई भी डाइट की कमी ना रह जाए किसी भी पॉपुलेशन में। माइक्रोब्स आर बीइंग ग्रोन इन इंडस्ट्रीज, माइक्रोब्स को हम इंडस्ट्रीज में ग्रो कराते हैं एज अ हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन सोर्स, जिसमें हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन सोर्स की पाई जाती है। इसके बाद हमारा स्पायरुलिना जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसको हम लोग क्विकली ऑन मटेरियल्स पे ग्रो कराते हैं, जैसे कि वेस्ट वाटर फ्रॉम पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स, स्ट्रॉ, मोलाशेस, एनिमल मैन्योर एक्सेट्रा। ये सब लार्ज क्वांटिटीज़ में
ग्रो कराए जाते हैं ताकि हम इनको प्रोड्यूस करा पाएँ, जैसे प्रोटीन्स, मिनरल, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स। ये मेथड रिड्यूस करता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन को भी। और कुछ बैक्टीरियल स्पीशीज़ जैसे कि मिथाइलोफिलस, मिथाइलोट्रॉफस कैन बी एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 25 टन्स। ये लगभग 25 टन्स ऑफ प्रोटीन को बनाता है। एक लार्ज स्केल पे कल्चर अगर किया जाए मशरूम का तो वो एक एक्सपेंडिंग इंडस्ट्री बना सकता है। देयर आर मेनी पीपल हु कंज्यूम एडिबल मशरूम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एडिबल मशरूम को कंज्यूम करते हैं एज अ फूड। अब बात करते हैं हम एक लास्ट टॉपिक की, विच इज़ टिश्यू कल्चर, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो टिश्यू कल्चर जैसे हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स की, तो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स हमारी फेल होती जा रही हैं। साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे होल प्लांट्स को डेवलप कराया है, जनरेट कराया। तो एनी प्लांट पार्ट, कोई भी ऐसा प्लांट पार्ट जो कि हमारा डेवलप हो रहा है एक टेस्ट ट्यूब में, स्टेराइल कंडीशंस में, मतलब आर्टिफिशियल कंडीशंस में, तो इज़ यूनिक न्यूट्रिएंट कल्चर। तो इसके पास एबिलिटी होती है कि वो पूरे प्लांट को ग्रो करा पाए सिर्फ एक सिंगल सेल से। तो इसको बोलते हैं टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी क्या होता है? एक स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट से हम पूरे प्लांट को जनरेट करा पाएँ, ताकि वो भी स्टेराइल कंडीशंस में। इसको बोलते हैं टोटिपोटेंसी। ये अप्लाइड मेथड है जो कि न्यूट्रिएंट और ग्रोथ रेगुलेटर्स इसमें हमें डालते हैं, जिससे एक प्लांट प्रॉपर एक सुटेबल कंडीशन में ग्रो कर जाए फॉर द एक्सप्लांट फॉर जनरेशन। इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन द प्रोपोगेशन। तो ये ज़रूरी है कि हम इसकी प्रोपोगेशन को भी जो है वो बढ़ा पाएँ लार्ज नंबर्स पे एक ब्रीफ पीरियड में। तो ये मेथड है, इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन मतलब जब हम ये टिश्यू कल्चर की टेक्निक को लार्ज पॉपुलेशन पे कंडक्ट कराते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स को ग्रो कराते हैं सिंगल प्लांट पार्ट से, तो इसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। तो ईच प्लांट इज जेनेटिकली आइडेंटिकल, और ये सारे प्लांट्स बेसिकली क्योंकि एक प्लांट पार्ट से ग्रो कराए हैं, तो ये सारे जो हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट प्लांट के। इसी को हम बोलते हैं सोमा क्लोन्स। क्लोन्स क्या होता है? जो एक्जैक्टली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट के, तो इनको बोलते हैं हम सोमा क्लोन्स। ओके। अनदर सिग्निफिकेंट बेनिफिट इसका ये है मेथड का कि ये जो हेल्दी प्लांट को रिकवर करा पाता है डिजीज प्लांट से। फॉर इंस्टेंस ये एक वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स जो है इसमें हम यूज़ करते हैं। जो मेरिस्टेम है इसका वो फ्री होना चाहिए वायरस से, और जो मेरिस्टेम है वो रिमूव कर दिया जाता है एंड ग्रोन इन विट्रो। विट्रो मतलब इन लैब कंडीशंस में, ताकि वो हम वायरस फ्री प्लांट को ले पाएँ, निकाल पाएँ। साइंटिस्ट इन्हें सक्सेसफुली इस कल्चर को मेरिस्टेम्स में बनानास को और शुगर केन्स बनाने में हेल्प कराया। And scientists have even isolated protoplast from 2 different plant varieties. इन्होंने प्रोटोप्लास्ट जो है 2 different plant varieties का उसको भी आइसोलेट करा है आफ्टर डाइजेस्टिंग देयर सेल वॉल्स, उनकी सेल वॉल्स को डाइजेस्ट करा के। एंड द प्रोटोप्लास्ट हैविंग अ डिजायरेबल कैरेक्टर कैन बी यूज टू, जो प्रोटोप्लास्ट है जिसके पास डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं उसको हम हाइब्रिड बनाने में काम में लेके आते हैं, एंड विच फर्दर डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट, जो कि फर्दर न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है। ये हाइब्रिड्स जो है इनको हम सोमैटिक हाइब्रिड्स बोलते हैं, और इस प्रोसेस को बोला जाता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। मतलब एक प्लांट के प्रोटोप्लास्ट को हमने आइसोलेट किया 2 different प्लांट्स के, फिर उसके बाद उनको उनकी सेल वॉल्स को डाइजेस्ट करा दिया, और वो प्रोटोप्लास्ट जिसमें डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं हाइब्रिड बनाने के लिए, उनको हमने फर्दर डेवलप कराया एक नए प्लांट में। इसको बोला जाता है सोमैटिक हाइब्रिड। तो दोनों हाइब्रिड बने हैं उनको बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिड्स, और जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। Okay, so this was the last topic, which is tissue culture. I hope this chapter is clear to you all. If you feel any doubt related to any topic, you all can comment in my comment section. Feel free to ask things, because it is the last chance for you all. So your exams are so close. Please revise the things periodically so that you all can get good marks in your board exams. Okay, so good luck to you all. All the best for your exams also. Bye. Take care.